Hey everyone, welcome to my channel. I hope you are doing great. If you have been following this series, you know we have already covered 14 parts of the PYQ series. If you haven't watched them yet, make sure to check them out. The links are in the description. So today we are moving on to part 15 where I'll cover more important PYQs. We have already completed 200 questions in the series till part 14. So to make things easier for you, I have compiled all those 200 questions into a PDF which is now available on my Telegram channel जिसका नाम है Study Sociology. Link is in the description, so don't forget to join it. Also, if you haven't seen the part 2 of that Understanding Sociology series where I explained Karl Marx's theories, do check that out as well. So before we begin, let me also remind you about the PDF I have created to help you with your preparations for any competitive exams like UPSC, NET, JRF or any other competitive exam. So the original price of the PDF is rupees 199, but for a limited time you can get it for just rupees 99. I have already uploaded a video explaining all the details. Check that video out so that आपको इस PDF के सारे information उससे मिल जाएंगे. Alright. So let's begin with today's first question. That is question number 201. Which of the following sociologists have worked on the concept of risk society? We have already did this question before. हम लोग को इसका आंसर ऑलरेडी पता है. रिस्क सोसाइटी, इनमें से कौन कौन से थिंकर्स रिस्क सोसाइटी पे वर्क कर चुके हैं? उल्रिक बेक, एंथनी गिडेंस, मैनुअल कैसल्स, निकोलस लूमन. देखो, उल्रिक बेक और एंथनी गिडेंस का वी नो कि इन लोगों ने बात करी है. बाकी तीसरे थिंकर कौन है? ये हमको पता है कि मैनुअल कैसल नहीं है, तो वी कैन एलिमिनेट ए, बी, डी इज द करेक्ट आंसर. सो उल्रिक बेक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क सोसाइटी, जिसका मतलब है कि जो सोसाइटी है वो आजकल नए रिस्क्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन या न्यूक्लियर डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज. सिमिलरली एंथनी गिडेंस टॉक्ड अबाउट रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, meaning that society constantly changes and people must adjust to new risks and technologies. Then Nicholas Luhmann ने आगे इसको और स्टडी किया कि how society processes risks and how people respond to danger in everyday life. Okay, the next question, question number 202. Match the following is Zygmunt Bauman, Michel Foucault, Manuel Castells एंड पियर बूर्दो. उनके कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्सेप्ट से मैच करना है. किसका कौन सा कॉन्सेप्ट है? दीज आर द कोड्स. ऑलराइट, तो जो अभी हमको पता है हम उसको मैच कर लेते हैं. मिशेल फुको किसके बारे में बात करते हैं? गवर्नमेंटालिटी. मैनुअल कैसल्स का कौन सा था? नेटवर्क सोसाइटी. जिगमंड बोमन लिक्विड मॉडर्निटी, पियर बूर्दो सिंबॉलिक वायलेंस. ए का 3 किसमें है? 2 ऑप्शंस हैं, दीज 2, 1 and 4. देन बी का 1. ऑलराइट, सो हमको आंसर मिल गया है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4. Question number 203. Which of the following best describes the concept of hyperreality by Jean Baudrillard? Option A, a world where media representations are more real than reality itself. Option 2, a society where only economic factors determine social life. Option 3, a form of postmodern nostalgia for the past. Option 4, a reality shaped by scientific and technological progress. क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर दीजिए. वेरी इजी क्वेश्चन. हाइपर रियलिटी से बॉड्रिलार्ड क्या एक्सप्लेन करते हैं? ऑप्शन ए, अ वर्ल्ड वेयर मीडिया रिप्रेजेंटेशंस आर मोर रियल दैन रियलिटी itself. So he said that modern society is filled with images and media that seems more real than actual life. For example,
Advertisements show perfect lives, making people believe in an unrealistic world. Question number 204. Post-colonial theory. So question है, which of the following sociologists have significantly contributed to the study of post-colonial theory? A. Edward Said, B. Gayatri Spivak, C. Immanuel Wallerstein, D. Homi Bhabha. इन कोड्स से आपको आंसर देना है. पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स पूछ रहे हैं आपसे. पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पे किनका किनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. द करेक्ट आंसर इज, देखो एडवर्ड साइड का वी नो, एडवर्ड साइड हैं. गायत्री स्पिवाक एंड होमी भाभा एज वेल. हम एलिमिनेट कर सकते थे, वॉलरस्टीन से कोई लेना देना नहीं है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का. दैट इज ए, बी एंड डी. देखो एडवर्ड साइड की कौन सी थ्योरी थी? ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म की थ्योरी दी थी उन्होंने. गायत्री स्पिवाक ने सबऑल्टर्न स्टडीज. उसके बाद होमी भाभा का कौन सा था? कैन एनीबडी टेल? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताइए मुझे. होमी भाभा ने हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जहां पे ही एक्सप्लेन्ड हाउ डिफरेंट कल्चर्स मिक्स आफ्टर कॉलोनियल रूल एंड न्यू आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड. Question number 205. Which of the following is not a characteristic of Anthony Giddens' theory of structuration? Option A, social structure both enable and restrict human action. Option 2, individuals have no agency and are completely controlled by structures. Option 3, structure and agency interact in shaping society. Option 4, social practices are constantly reproduced through human interaction. Question number 205. Very easy question. आपको यहाँ पर देखो कीवर्ड दिख रहा है हमें. एजेंसी कहाँ? एजेंसी तो स्ट्रक्चरेशन का एकदम की पॉइंट है. नो एजेंसी कैसे बोल रहा है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. इंडिविजुअल हैव नो एजेंसी एंड कंप्लीट कंट्रोल बाय स्ट्रक्चर्स. So society and individuals, they influence each other. People are not just controlled by society, they also change it by their actions. Match the following question again. Nancy Fraser, Anthony Giddens, Saskia Sassen, David Harvey. उनके key works हैं, key concepts हैं. The consequence of modernity, PYQ है. This is the PYQ. Redistribution and recognition, हमने कल ही के वीडियो में ये पढ़ा है किसका कॉन्सेप्ट है. The global city. द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी. ये कोड्स हैं, आपको इन कोड से आंसर देना है 206 का. देखो कल ही हमने पढ़ा था नैन्सी फ्रेजर का. ऑप्शन 2, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकॉग्निशन, राइट. एंथनी गिडन्स ने दिया था हमें कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, PYQ भी है. सास्किया सासन, ग्लोबल सिटीज. डेविड हार्वी का द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी. ऑल राइट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए का 2 एक ही ऑप्शन में. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 207. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंटैलिटी बाय मिशेल फुको? Option 1, how governments control population through institutions, surveillance and self-discipline. Option 2, the rise of democratic governance in modern nation states. Option 3, the economic policies that lead to globalization. Option 4, the role of political parties in shaping governance. Question number 207 का करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. देखो उसमें हर चीज़ आ गई. इंस्टीट्यूशन, सर्वेलांस, सेल्फ डिसिप्लिन. हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल पीपल थ्रू इंस्टीट्यूशन, सर्वेलांस एंड सेल्फ डिसिप्लिन. सो फुको की गवर्नमेंटैलिटी क्या कहता है, कि थ्योरी क्या कहती है कि गवर्नमेंट्स डोंट जस्ट यूज
police or laws to control people. They also use schools, hospitals and media to make people behave in certain way. Question number 208. Who among the following sociologists has critically examined the concept of neoliberalism? Option A, David Harvey. Option B, Pierre Bourdieu. Option C, Carl Polanyi. Option D, Zygmunt Bauman. आपसे न्यूलिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया है ये पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 108. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, A, B and D. डेविड हावी, पियर बूर्डो एंड जिगमंड बोमन. सो डेविड हावी ने न्यूलिबरलिज्म यूज़ किया था. कैसे? इन्होंने बताया कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है इट बेनिफिट्स द रिच एंड हार्म्स द पुअर. So he criticized how modern capitalism creates inequality. पियर बूर्डो का क्या था? उन्होंने क्या थ्योरी दी थी पियर बूर्डो ने? कैपिटल एंड पावर. कैपिटल एंड पावर में ही एक्सप्लेन्ड हाउ एजुकेशन एंड कल्चर गिव सम पीपल मोर एडवांटेजेस इन सोसाइटी. राइट? जिगमंड बोमन ही सेड दैट in today's world, jobs, relationships and identities, they all are temporary and unstable. तो Zygmunt Bauman के हम liquid, just a second, modernity की थ्योरी देखते हैं. राइट? जिगमंड बोमन ने हमको लिक्विड मॉडर्निटी की थ्योरी दी थी. हमने कितनी बार पढ़ा भी है. क्वेश्चन नंबर 209. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैव वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल? ये आपके थिंकर्स हैं. आपको बताना है कि किसने किसने कल्चर कैपिटल की थ्योरी या कल्चर कैपिटल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. और ये कोड्स हैं. कल्चर कैपिटल. According to Wikipedia, Hans Weidler is an American super. 2, A, C and D. Pierre Bourdieu and Swidler and Raymond Williams. स्टुअर्ट हॉल इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं कल्चर कैपिटल के बारे में. बूर्डो का तो काफ़ी फेमस थ्योरी है कल्चर कैपिटल की, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जो नॉलेज और एजुकेशन है गिव सम पीपल एन एडवांटेज. अभी हमने ऊपर देखा. स्विडलर ने हमको थ्योरी दी थी, आई राइट इट डाउन हियर. इन्होंने हमको कल्चरल टूल किट के बारे में बताया था. जहाँ पे ही सेड दैट पीपल यूज़ कल्चर लाइक अ टूल बॉक्स टू मेक डिसीजंस इन लाइफ. विलियम्स ने, जो रेमंड विलियम है, इनकी थ्योरी थी, उन्होंने बोला था कल्चर इज ऑर्डिनरी. He argued that culture is not just about art and literature but also about everyday life. Alright, so moving forward to the next question, question number 210. Again match the following question. Very easy question. आपसे टाइप्स ऑफ पावर पूछे जा रहे हैं और किन किन थ्योरिस्ट्स ने कौन से टाइप्स ऑफ पावर के बारे में बात करी है, कौन से टाइप्स ऑफ पावर दिए हैं, आपको वो बताना है. पेनॉप्टिकन, करिज्मेटिक पावर, हेजेमनी, रैशनल लीगल. थ्योरिस्ट हैं मैक्स वेबर, एंटोनियो ग्रामशी, मिशेल फुको, देन अगैन मैक्स वेबर. मैक्स वेबर के 2 कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं. ऑलराइट, सो पेनॉप्टिकन जो है, पेनॉप्टिकन का कॉन्सेप्ट किसका था? मिशेल फुको का. ए का 3, इन दोनों ऑप्शंस में है हमारे पास ए का 3, राइट. सो डी का ऑलरेडी हमको पता चल गया 4 होगा, मिशेल फुको का रैशनल लीगल.
करिज्मेटिक पावर, अगेन मैक्स वेबर। और हेजेमनी किसका था? एंटोनियो ग्रामशी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 211. Which of the following describes Arjun Appadurai's concept of scapes in globalization? अर्जुन अपादुराय ने कुछ टाइप्स ऑफ स्केप्स बताए थे, उस कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1, ग्लोबल फ्लोज of people, media, technology, finance and ideas shape societies differently. Option 2, the world is moving towards a single homogeneous culture. Option 3, the nation state remains the most important force in globalization. Option 4, social change only occur through economic globalization. आपके ऑप्शंस में ही सारे स्केप्स के बारे में बताया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। देखो, मीडिया, टेक्नोस्केप, फाइनेंस, आइडियोस्केप, ये सारे स्केप्स अर्जुन अपादुराई के ने अपने स्केप्स की थ्योरी में बताए थे ना। सो अर्जुन अपादुराई ने ग्लोबलाइजेशन में क्या बताया था? उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज कनेक्टेड बट ईच प्लेस चेंज इन यूनिक वे। उनके मीडिया, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, आइडियाज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 212. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जिगमंड बॉमेन्स आइडिया ऑफ लिक्विड मॉडर्निटी? ऑप्शन 1, अ वर्ल्ड वेयर सोशल स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल and constantly changing. Option 2, a return to traditional social norms and values. Option 3, a rigid society where institutions have complete control. Option 4, a phase of history where technological change has stopped. Very easy question. हम पता नहीं कितनी बार जिगमंड बॉमेन के लिक्विड मॉडर्निटी से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। The correct answer is option 1, a world where social structures are unstable and constantly changing. I don't think यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। हम लिक्विड मॉडर्निटी की थ्योरी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इसी PYQ सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 213. Who among the following scholars have worked on the concept of social imaginaries? Option A, Charles Taylor. Option B, Cornelius Castoriadis and Benedict Anderson. तो चार्ल्स टेलर ने क्या हमको, चार्ल्स टेलर की थ्योरी क्या थी? सबसे पहली चीज़ इन्होंने दिया था मल्टी कल्चरलिज्म। कास्टरायाडिस की थ्योरी थी, I'll write it down here, imaginary institution of society. और एंडरसन ने तो वी ऑलरेडी नो, इन्होंने बात करी है इमेजिन कम्युनिटीज़ की। All right. Moving forward to the next question. Question number 214. Match the following question. यहाँ पे कुछ टर्म्स है और उनके डेफिनेशंस आपको दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, हैबिटस, सोशल फैक्ट, स्ट्रक्चरेशन। द करेक्ट आंसर इज, देखो, ए का रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, ए का 4, अ प्रोसेस where modern society constantly reevaluates and modifies its rules. So society constantly updates its rules based on new risks. Then habitus का
ऑप्शन 2 देखो, हैबिट, इनग्रेन्ड हैबिट, स्किल्स, वे ऑफ थिंकिंग, सारे कीवर्ड्स हैं. सो पीपल्स हैबिट एंड थिंकिंग पैटर्न्स आर शेप्ड बाय देयर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस. देन सोशल फैक्ट का है थर्ड, एक्सटर्नल सोशल स्ट्रक्चर्स दैट शेप इंडिविजुअल बिहेवियर. सो सोशल फैक्ट में सोसाइटी इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, जैसे कि जो भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, लॉज होते हैं, वो सब. और स्ट्रक्चरेशन का है द एबिलिटी of individual to create and shape their own social reality. So people and society influence each other. हमने पढ़ा था ना एजेंसी और स्ट्रक्चर का, वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, सो लेट अस मैच ए का 4. ऑलराइट, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1. क्वेश्चन नंबर 215. Which of the following scholars have critically analyzed the concept of precarity in modern society? A. Judith Butler, B. Guy Standing, C. Antonio Negri, D. Saskia Sassen. Precarity का concept किसका था? The correct answer is A. Judith Butler, B. Guy Standing and D. Saskia Sassen. जूडिथ बटलर की थ्योरी कौन सी थी? जेंडर परफॉर्मेटिविटी. हमने कल ही के वीडियो में पढ़ा है जेंडर परफॉर्मेटिविटी के बारे में. गाय स्टैंडिंग ने दिया था द प्रिकैरिएट, और सास्किया सासन का ग्लोबलाइजेशन एंड इनइक्वालिटी. ऑलराइट, तो जूडिथ बटलर का है जेंडर परफॉर्मेटिविटी, द प्रिकैरिएट गाय स्टैंडिंग का है, और सास्किया सासन का ग्लोबलाइजेशन एंड इनइक्वालिटी. ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल्सो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था 1000 प्लस सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में. आपको इसका PDF चाहिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस चैनल. इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में. ये PDF आपको अभी 50% डिस्काउंट में मिलेगा और ओरिजिनल प्राइस है 200 रुपीज़, लेकिन अभी यू कैन अवेल इट इन जस्ट ₹100. ऑल राइट, सो इसके लिए भी एक वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दी है. आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Meet you guys in the next video. Thank you guys.